میں اپنے پریس کانفرنسز میں کہہ چکا ہوں کہ بیرونی قوتیں اس میں ملوث ہیں، اور وہ ایک الزام، محض ایک الزام نہیں ہے، ہر فورم پر اس کے ثبوت دیے گئے، بلکہ ہر باشعور بندہ جو میڈیا دیکھتا ہے، سوشل میڈیا دیکھتا ہے، اس کو ہر چیز اس کتاب کی کھلی کتاب کی طرح پتہ ہے کہ اس میں کون ملوث ہے۔ تو اس کو وہ مختلف نعرے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی، ان کو جو ہے پیسے دے کر خریدنے کی کوشش کی تاکہ ہم اس کو پاکستان سے ایک علیحدگی کا نام دیں، جو محض کارروائی کرنے کا ایک بہانہ ہے، جس کی وجہ سے دشمن ملک کی وجہ سے ہزاروں جانوں کا نقصان ہمیں ہو چکا ہے۔ تو اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ویژن جو ہے بالکل کلیئر ہے کہ دہشت گردی کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا، اور دہشت گردوں کو بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ پہلے تو میں اپنے قوم، اپنے لوگوں کو یہ ایک بات بتانا چاہوں، یہ بالکل بھی ایک حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ بالکل آزادی کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک دہشت گردی ہے جس میں نہ کسی پنجابی کو کوئی بلوچ مارتا ہے۔ اس میں جو ایک دہشت گرد لوگوں کو استعمال کر کے ہمارے مخالف قوتیں ہمارے بھائی چارے کو، ہمارے ملک کی فضا کو خراب کرتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا، جس طرح آپ کو پتہ ہے، گوادر میں ہمارے 7 مزدور مارے گئے۔ اسی طرح پروپیگنڈا کہ یہ جو ہیں انٹیلیجنس اداروں کی وہ ہیں لوگ ہیں۔ ہم نے اپنے تمام اداروں کو، تمام خفیہ اداروں کو، سی ٹی ڈی سب کو کہا کہ اس چیز کو ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے غریب شہری لوگ ہر دن ان دہشت گردوں کا شکار بنے۔ تو ہم نے ان کو سخت آرڈرز اور ٹاسک دیا تھا کہ ہمیں ہر حالت میں یہ قاتل چاہیے۔ ابھی ہم اپنے مزید لوگوں کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہمارے تمام اداروں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، سی ٹی ڈی، جن سب نے کوشش کر کے حکومت کے جو آرڈرز ہیں اور ان کی جو اپنی ذمہ داری ہے ان کو نبھایا، اور بالآخر وہ گوادر میں جو مزدور قتل ہوئے تھے ان کے قاتلوں کو ہم نے دو کو پکڑ لیا ہے، اور جن سے جس طرح ایک ریاست ایک کسی مخصوص بندے یا چیز کے لیے انکوائری نہیں کرتی، وہ ریاست کے بچاؤ کے لیے کرتی ہے۔ تو ان کے بیانات سامنے آ گئے جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کو آرڈرز دیے گئے تھے کہ ان کے مطابق ہم نے ان کو مارا ہے۔ ان سے وہ بندوقیں بھی برآمد ہوئے ہیں، ہتھیار بھی برآمد ہوئے ہیں۔ ان کے بقول نہ یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ کسی ادارے کے لوگ ہیں، نہ یہ کسی کے لیے کام کرتے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ادھر جو بھی پنجابی آتا ہے، پنجابی مزدور، آپ نے اس کو مارنا ہے، آپ نے اس کو قتل کرنا ہے۔ باقی نہ اس سلسلے میں ہماری وہ تھی کوئی انٹیلیجنس اداروں پر وہ تھا۔ تو یہ ہم اپنے لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں، ہم اپنے عوام کو کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی پاکستان کو بنانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ پاکستان نے بہت سفر کیا ہے، ہمارے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے۔ ہمیں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے، یہ ہمارے حقوق کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کرنے اور ہمارے ملک کو دشمن قوتوں کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر ان کے مزید تفتیش سے پتہ چلا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ایکشنز کرتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں، اس میں جو ہے آپ سب سے پہلے ہمیں انفارم کر کے، اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا میں ایک نام سے ہے کوئی باؤٹ بلوچ، اس کو جو ہے آپ بھیج دیں تاکہ وہ سوشل میڈیا میں فوراً اس کو دے دیں۔ تو اگر سوشل میڈیا میں بھی ہم کبھی کدھر کوئی چیز سختی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی یہی دہشت گرد عناصر ہوتے ہیں جن کی روک تھام اور آپ کی زندگی کے لیے ہم یہ چیزیں کرتے ہیں۔ تو ابھی وزیر اعلیٰ صاحب، حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ ایک دہشت گرد لوگ ہیں، ان کو ہمارے حقوق سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ حقوق جس کو چاہیے، ابھی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بلوچستان کے زمینداروں نے جو ہڑتال کی تھی، اس ہڑتال میں ہمارے 70% لوگوں کا دار و مدار آپ کو پتہ ہے زراعت پر ہے۔ وہ خود یہاں سے گئے اور فیڈرل گورنمنٹ سے ان کے لیے 50 ارب روپے کی منظوری کرائی۔ حقوق کی جنگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ جا کر اپنے لوگوں کی، یہ کہ آپ کسی غریب کو ماریں، کسی
मजदूर को जो वहाँ से अपने बच्चों का पेट पालने बलूचिस्तान आया है, बलूचिस्तान के लोग वहाँ जाते हैं, इसको हम सब लोगों को समझना चाहिए कि ये हमारे हकूक़ की जंग नहीं है, ये हमारे मुल्क को दहशतगर्दी में फैलाने और दुश्मन के मज़मूम मकासद को पूरे करने की जंग है। तो एक मरतबा फिर मैं अपने तमाम इदारों को मुबारकबाद देता हूँ, CTD को, कि जिस तरह उन्होंने इन गरीब मज़दूरों के कातिलों को पकड़ा है। इंशाअल्लाह मज़ीद मैं अपने भी तमाम ऑफिसर्स से भी यही कहना चाहता हूँ कि अभी बिल्कुल मज़ीद सफ़र करने के लिए कुछ नहीं है, अभी सब ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी हैं। जिधर जो हकूक़ की बात करेगा, जो बलूचिस्तान की हकूक़ के हवाले से बात करेगा, हम 2 कदम आगे होंगे, हम उसके लिए हर जगह जाएंगे। लेकिन ये जो बंदूक का इस्तेमाल, ये अपने गरीब नेते लोगों को मारना, अपनी फोर्सेस को मारना, ख़ास कर इनका टारगेट होता है, जिसमें बयान में आया गया कि आप इन फोर्सेस को टारगेट करें। हम अपनी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े हैं इस दहशतगर्दी की जंग में, और जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसको हम इंशाअल्लाह उसकी औकात दिखा देंगे। सर, ये जो गिरफ्तार हुए हैं, एक तो ये बताएं कि कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं, दूसरा सिर्फ यही 2 हैं या और मफरूर भी है, इसके साथ साथ गुरबत और फिर जो नोशकी में इसी नौयत के जो वाक़यात हुए उसमें क्या पेशरफ्त है, उनकी मुल्ज़िमात के बारे में? देखें, ये इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए हमारे तमाम इदारों ने। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि तफ्तीश चल रही है उन चीज़ों को, अदालत में ये चीज़ जानी है तो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो उसमें कुछ जदीद उसको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि अभी हमारा फ़ैसला है कि हम अपने मुल्क को इस तरह दहशतगर्दी के हवाले करने नहीं देंगे, दहशतगर्दों के हवाले करने नहीं देंगे। जिधर वाक़या हुआ है, नोशकी का आपने कहा, तुरबत मच, गवर्नमेंट नहीं आई है। जब गवर्नमेंट नहीं आती है, बहुत सी चीज़ों को पहले आपने संभालना होता है। तो अभी मैं इन सब चीज़ों के वज़ीर आला साहब के हुक्म के मुताबिक देखना है, और गफलत बर्दाश्त करने वाले और दहशतगर्द जो अवाम के जान और माल में गफलत बर्दाश्त करेंगे उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, और जो दहशतगर्द हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसमें एक चीज़ सर, इसमें जी मैं इसमें सिर्फ आपके सवाल के, दोनों दहशतगर्द BLA से हैं जी, दोनों गवादर से गिरफ़्तार हुए हैं, और एक जो लड़का है वो उसी इलाके का सुरबंदर का ही रहने वाला है जहाँ पे इन मज़दूरों को शहीद किया गया था, मारा गया था। और नोशकी की जहाँ तक बात है, उस पर होम मिनिस्टर साहब और CM साहब अब तक 3 मीटिंग्स कर चुके हैं, और मैं आपको यहाँ ये ज़रूर बताऊँगा कि ग्रुप उसका आइडेंटिफाई हो चुका है। जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे, जो फैसिलिटेटर्स थे, जो नोशकी के रहने वाले थे, वो कहाँ से आए, किस रूट से आए, वो चीज़ें भी आइडेंटिफाई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द होम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में और CM साहब की मौजूदगी में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी आपको तमाम डिटेल ज़रूर बताएंगे। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताएं कि सर जो पिछले 1-2 हफ्तों से मामला चल रहे हैं कि जो कौमी शाहराएँ हैं गैर महफूज है, और साथ ही साथ वहाँ पर क्योंकि आपकी तरफ से एक्शन भी आया, मगर अब तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई कि जो बत्ते का मामला है वो अब भी सरेआम जारी है, और इन कौमी शाहराहों को महफूज बनाने के लिए सर भी मौजूद है, किस तरीके के इक़दाम जो है वो उठा रहे हैं? देखिए, ये हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं, जो पुलिस है या लेवीज जो हैं, ये भी हम में से हैं। इसमें भी जिस तरह हम अच्छा बुरा करते हैं, उनमें भी ऐसे लोग होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई उस पर हमने एक्शन लिया है, पुलिस ने, IG साहब ने एक्शन लिया है। जो बंदे इसमें मुलव्विस थे उनको उसी टाइम हमने जो है टर्मिनेट कर लिया है। इस चीज़ को हमने पहले भी कहा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी शाहराओं के हवाले से परसों भी एक अहम नौयत की मीटिंग थी, CM साहब भी उसमें थे, तो उसमें भी यही कहा गया है कि अभी पुलिस और लेवीज़ का काम ही यही है कि उसको हमारी शाहराएँ महफूज करनी है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हमारी फोर्सेस लड़ेंगी, शाहराएँ महफूज करना पुलिस और लेवीज़ का काम है। इसमें इंशाअल्लाह डे बाई डे आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। आप कह रहे हैं कि नई हुकूमत है, चीज़ों को समझने में, संभालने में वक्त लगेगा। आप पहले भी वज़ीर दाखिला रह चुके बलूचिस्तान के, तो आपको काफ़ी तजुर्बा होना चाहिए ना कि क्या इक़दाम होने चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने में, क्या मामला आता है, क्या मुश्किलात पेश आ सकती है, किस तरह उनको कवर करना चाहिए? समझने और संभालने का मसला नहीं है।
जब आप हुकूमत में नए नए आते हैं, आप एक नई जिम्मेदारी होती है, आपको एक 6-7 महीने का गैप हो जाता है, उसमें नए मसाइल आ जाते हैं, नए ब्रीफिंग्स हो जाते हैं. जिस तरह आपको पता है इससे पहले जब हुकूमत थी तो दहशतगर्दी जैसी कार्रवाइयाँ ज़रूर होती थी, लेकिन जिस तरह मच का वाक़या था और जिस तरह नोशकी का वाक़या था तो इसमें इस तरह के वाक़यात नहीं थे. तो अभी जो इस किस्म के नए दहशतगर्दी के वाक़यात जिनको एक बड़ी सपोर्ट मिल रही है, इस हवाले से हम नई हिकमत अमली बना रहे हैं कि ये जो हमारे चीज़ें कमज़ोरियों से हुई है, आइंदा ये चीज़ें ना हों. एक स्कूल को नजरआतिश कर दिया गया पुलिस के रिकॉर्ड रूम को जला दिया गया, तो क्या ये दहशतगर्दी का वाक़या कुछ मालूम हो सकता है? तफ्तीश कर रहे हैं सर इसके. देखें, ये रिसेंटली हुआ है, इसको फ़ौरन हम नहीं कह सकते किसी पर. इसको बाकायदा हमारे इदारे हैं, वो प्रॉपर तफ्तीश करके एक प्रॉपर उसका हमें दे देते हैं, फिर हम उस पर आपको कह सकते हैं. ईरान की तरफ से फायरिंग वाक़या हुआ था 2 दिन पहले, कुछ वहाँ के सरहदी इलाके से ताल्लुक़ बलूचिस्तान के लोगों को कुछ उसमें हरकतें हुई हैं और इतलात ये कि 2 बंदूकों के साथ भी ईरानी फोर्सेज के साथ ये भी क्या पेश हुई, कोई रब्ता किया ईरानी गवर्नमेंट से या ईरान किस पर खाने से कोई रब्ता हुआ है इस मामले पर? क्या देखें, ये ज़रूर हमारा वो है सूबा है जिसके बॉर्डर में हुआ है, मेल होता है, लेकिन इस तरह के एक्शंस फिर जो है फेडरल गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उनके साथ, तो उनके इल्म में है. जो भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला करेगा उससे ज़रूर उसकी जवाब तलबी ज़रूर की जाएगी.